हेलो लर्नर्स, कैसे बच्चे लोग? सब ठीक है ना? सो एवरी केपीएसआर स्टूडेंट, इनको पता है हम टॉपर्स सीरीज से लेके आ गया आपके लिए, आपको टॉप रैंक लाने के लिए। मैं बार बार ये बोल रहे, देयर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन top 500 ranker and top 5000 ranker. So to become top 500 ranker, the toughest and tricky questions of GATE and ESC, we are going to do in special classes, in YT sessions. So many special classes already taken. So the episodes of Topper series are continued from here now onwards. So guys, today we are doing the toughest question in the Topper series. Before going to start the question, so GATE 2025 प्रिपरेशन आपको आसान करने के लिए अनअकैडमी लाके आ गया आपके लिए द बेस्ट एवर ऑफर 9,999 rupees only. So use our universal code KP Civil. आपको गेट सिविल सब्सक्रिप्शन मिलेगा, इनके साथ साथ में गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, और द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आर टीचिंग इन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. नो डाउट वी आर बेस्ट, वी डिलीवर द बेस्ट कंटेंट फॉर क्रैकिंग योर ड्रीम्स. सो गाइस, व्हाई यू आर वेटिंग, डू जॉइन अवर कोर्सेस using our universal code KP Civil. So moving forward, we are moving forward towards the question. So this is the question where air pollution, the very deep and the toughest concepts have been asked. So we know wind-rose diagram. Wind-rose diagram is going to measure the direction of wind. Wind-rose diagram along with pollutant concentration determination. So दोनों साथ साथ में एक एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन गेट 23 में दिया. दिस इज गेट 2023 क्वेश्चन. इनका नेक्स्ट कंटिन्यूएशन वन मोर मॉडल इन गेट 2024 में भी दिया. इट इज इन गेट एनवायरमेंटल साइंस पेपर में दिया है, एंड देर इज ए चांस इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी गेट सिविल पेपर में भी आ सकता है. एंड एक बात तो इधर बोलना पड़ेगा, ये मॉडल का बारे में आपको अभी तक कोई टीचर, कोई प्लेटफॉर्म, कहां पे भी सॉल्यूशन नहीं मिल गया. पहले बार पूरा दुनिया में पहले बार हम आपके लिए सॉल्यूशन लेके आ गया. सो गाइस, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कवर इन द टॉपर सीरीज. पहले बार आपका आप सर्च करो, ये क्वेश्चन का बारे में सॉल्यूशन कहां पे भी कभी भी नहीं मिलेगा. फिर आपका केपीएसआर लाके आ गया आपके लिए. सो एन इंडस्ट्री विथ इफेक्टिव स्टैक हाइट ऑफ 80 मीटर emits 1200 gram per hour of carbon monoxide. The wind rose plotted using the meteorological data at the top of the stock. Wind rose plotted using meteorological data at the top of the stock. The relation between dispersion coefficient and wind direction are given below. Means wind कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट वेस्ट. Dispersion coefficient data given. So we'll see the data first. This is wind-rose diagram. These are dispersion coefficients. During maximum duration of the year, ground level PM 2.5 concentration at the downward distance of 2 km from the stack is. So ground level में 2.5 PM 2.5 concentration at a downward distance of 2 km from the stack is. So we need the answer in microgram per meter cube. आपको पहले पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन का बारे में गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन तो पता करना पड़ेगा.
यू मस्ट नो पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन का बारे में. सिंप्लीफाइड गाजियन मॉडल, Gaussian distribution model. This can give you any pollutant concentration. Please understand. Gaussian distribution model can give you any pollutant concentration, different directions में. So concentration of pollutant in X, Y, Z directions at a stack height of h. Concentration of pollutant in X, Y, Z directions at a stack height of h. Q upon 2 pi u dispersion coefficient, standard deviation in y-axis, standard deviation in z-axis. ये तो dispersion coefficient का. Then when wind traveling in horizontal direction, e raised to minus 1 by 2 y by sigma y whole square. Wind traveled in horizontal direction. ये देखो बेटा, ये फार्मूला है ना, this gives plume behavior traveling at the center line. ये तो सेंटर लाइन को बोल रहा है, सेंटर लाइन को. एंड दिस इज गिवन फॉर हॉरिजॉन्टल क्रॉस विंड को बोल रहे, हॉरिजॉन्टल, एंड वी टॉक विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉस विंड कॉन्सेंट्रेशन. एंड इफ इट इज अ ट्रैवलिंग z-axis vertically travel करने के बाद e raised to minus 1 by 2 z minus h whole square upon sigma z square plus e raised to plus 1 by 2 z minus h whole square upon sigma y square. ये दोनों हम ले लेंगे किसके लिए? वर्टिकल डायरेक्शन के लिए. ये दोनों हम ले सकता है किसके लिए बेटा? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल क्रॉस विंड वर्टिकल के लिए. बट सेंटर लाइन में ये कॉमन होता है. व्हेन यू आर टॉकिंग फ्रॉम सेंटर लाइन दैट विल बी कॉमन. इफ इट इज अ डाउन विंड होता है e raised to minus 1 by 2 h by sigma z whole square. So there are three. One is crosswind horizontal, another one is vertical, another one is ground level downwind. Downwind horizontal, not crosswind. Please understand. Downwind horizontal. At what height? At a height of stack. At a height of stack h. Please understand, there are three distribution directions x, y, z. So horizontal में चल रहे क्रॉस विंड y डायरेक्शन ले रहे, वर्टिकल में चल रहे z डायरेक्शन ले रहे, डाउन विंड हॉरिजॉन्टल ले रहे h by सिग्मा z ले रहा है. सो हम तो ये चेक करना पड़ेगा, हमको ये चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में. ग्राउंड लेवल पूछ रहे, PM 2.5 concentration, downwind distance of some 2 kilometer from the stack. स्टैक से डाउनविंड चल रहा है, स्टैक से डाउनविंड चल रहा है. सो डाउनविंड बोलने के बाद क्या लेना है? डाउनविंड फ्रॉम स्टैक. प्लीज अंडरस्टैंड, हम ये लेना पड़ेगा डाउनविंड फ्रॉम स्टैक के लिए. सी एक्स डायरेक्शन में y एंड z 0 डाउन विंड बोल रहे हैं ना, नॉट क्रॉस विंड, नॉट वर्टिकल. सो 0 बट स्टैक हाइट में लेना पड़ेगा. सो यू कैन टेक q by pi sigma y sigma z wind velocity u e raised to minus 1 by 2 h upon sigma z
होल स्क्वायर। ये तो डाउनवर्ड एट ए हाइट सर्टेन हाइट फ्रॉम द स्टैक बोल दिया, समझ लो बेटा। डाउनवर्ड बोल रहा है डाउन विंड के लिए, डाउन विंड के लिए एट सर्टेन हाइट फ्रॉम द स्टैक, सो स्टैक हाइट h ले रहा है and z x 0 so only one direction consider कर रहे 1 pi. If you are considering two directions, one is horizontal, another one either crosswind or vertical, then you take 2. horizontal तो चल रहा है, horizontal crosswind, downwind horizontal बस, not vertical not crosswind. So q by pi ले रहा है, q by pi sigma by sigma z u e raised to minus 1 by 2 into h by sigma z whole square. So ये तो पता है q given, देखो एक बार q तो दिया है हमको, q is given 1200 ग्राम पर आवर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बात सुनो, 1200 ग्राम पर आवर कार्बन मोनोऑक्साइड इज गिवन, क्वेश्चन में pm 2.5 पूछ रहा है। So we assume that same amount is considered here, same effective flow rate is considered 1200 ग्राम पर आवर। ये तो माइक्रोग्राम पर सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 10 पावर 6 अपॉन 3600 माइक्रोग्राम पर सेकंड कन्वर्शन के लिए। देखो क्या रीजन क्या है, फॉर्मूला में डिस्चार्ज सेकंड में होना चाहिए एंड वी नीड आंसर टू बी एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम पर सेकंड में लाना पड़ेगा। सो व्हाट आर यू गेटिंग, यू कैन गेट, चेक करो 1200 इंटू 10 पावर 6 बाई 3600, उधर आपको तो ये मिल रहा है 0.33333 इंटू 10 पावर 6 माइक्रोग्राम पर सेकंड। सो कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, आपको डिस्चार्ज 0.33333 इंटू 10⁻⁶ पाई। अब तो ये डिस्पर्शन कोएफिशिएंट होता है सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। प्लीज अंडरस्टैंड dispersion coefficients in meter given. These are the dispersion coefficients. Crosswind sigma y, vertical sigma z, dispersion coefficient. But इतना बड़ा डेटा दिया है, क्या लेना जरूरी, what data we have to take for that information, विंडरोज डायग्राम से लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक विंडरोज डायग्राम। ये विंडरोज डायग्राम में देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द ईयर। क्वेश्चन में ये पूछ लिया विंड ट्रैवलिंग ग्राउंडवर्ड, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ईयर, व्हाट इट शुड बी, इन विच डायरेक्शन, the direction at which longitudinal axis will present, direction at longitudinal axis travel. So please check the axis traveled, longest distance traveled towards northwest only, and the highest percentage included where, towards northwest only, na, highest percentage included. See, this is the northwest segment included. So the axis towards wind traveling with a wind speed of 3 meters per second. So, longest axis we have to take, please understand, longest axis of travel। ये पिक्चर से हमको लॉन्गेस्ट एक्सिस बोल रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट थ्रू लॉन्गेस्ट एक्सिस। सो फ्रॉम द डेटा फ्रॉम विंड रोज हमको पता हो गया हम लॉन्गेस्ट एक्सिस लेना पड़ेगा। वो लॉन्गेस्ट एक्सिस क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट एक्सिस हो रहा है। और एक बार रिपीट कर रहे,
विंड रोज डायग्राम में different percentages of wind flow in different directions given. In the diagram, which can show longest axis, towards that maximum duration of the year wind चल रहा है. Longest axis का जगह पे डायग्राम में कौन सा डायरेक्शन में लॉन्गेस्ट एक्सिस चल रहा है, वो डायरेक्शन में पूरा ईयर में मैक्सिमम ड्यूरेशन हवा चल रहा है. देखो पिक्चर देखो एक बार, पिक्चर देखो एक बार, समझ आएगा आपको. लॉन्गेस्ट एक्सिस कौन आएगा पिक्चर में? हवा. मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द ईयर में लॉन्गेस्ट एक्सिस किसको आ गया बोलो? अब बताओ पिक्चर देख के. लॉन्गेस्ट एक्सिस पिक्चर देख के बताओ. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है लॉन्गेस्ट एक्सिस. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है लॉन्गेस्ट एक्सिस. सो हम ये ले लिया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ले लिया. सिग्मा वाई 40, सिग्मा जेड 35. क्रॉस विंड डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन. क्रॉस विंड डायरेक्शन इज टेकन एज वाई, vertical direction is taken as Z. So we have taken that 40 and 35. ले लो, pi is 40, sorry pi into sigma Z. फार्मूला ले लिया ना, फार्मूला से पता हो गया ना हमको. देखो ये फार्मूला, सिग्मा वाई सिग्मा Z U, 40 into 35 U 3 meter per second, e raised to -1/2 into h. Stack height ले लो बेटा. We are using this formula, please understand. In the entire formula downward towards ground में हम ये फार्मूला यूज कर रहा है. ये स्टार मार्क लगा दो फार्मूला को. ये फार्मूला यूज कर रहे हैं. देन स्टैक हाइट तो लगा दिया 80 मीटर. 80 मीटर स्टैक हाइट तो लगा दिया. समझ आ रहा है आपको? विंड वेलोसिटी, विंड स्पीड दिया है. देखो विंड स्पीड तो इधर लगा दिया 3 मीटर पर सेकंड. स्टैक हाइट तो 80 मीटर. सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग 80 मीटर अपॉन 35 होल स्क्वायर. होल स्क्वायर चेक करो फार्मूला में, चेक करो फार्मूला में. होल स्क्वायर सिग्मा जेड, सिग्मा जेड इज 35 ना, सिग्मा जेड इज 35 ना. So we are substituting in the formula. देखो क्या मिल रहा है आपको. प्लीज आई रिपीट. Q डिस्चार्ज ले लिया माइक्रोग्राम पर सेकंड में, डिस्चार्ज ले लिया माइक्रोग्राम पर सेकंड में, ले लिया डिस्चार्ज वैल्यू, माइक्रोग्राम पर सेकंड में डिस्चार्ज वैल्यू. देन दिस इज मीटर इंटू मीटर पर सेकंड. सेकंड एंड सेकंड कट हो गया, सेकंड एंड सेकंड कट हो गया. सो आंसर मिलेगा माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. दिस इज इन मीटर, दिस इज इन मीटर. ये तो कट होता है. सो नाउ वी आर गेटिंग. प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी, प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी. फटाफट बताओ बेटा, व्हाट आर यू गेटिंग द आंसर? क्या मिल रहा है आपको? मिल रहा है 1.8544 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. ये मिलेगा आपको 1.8444 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. एक बार बोलना जरूरी. देर आर 3 पॉसिबिलिटीज. वन इज हॉरिजॉन्टल क्रॉस विंड, अनदर वन इज वर्टिकल, अनदर वन इज डाउन विंड हॉरिजॉन्टल. सो हमको डाउन विंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया, ये ले लिया. सो ओनली वन डायरेक्शन में सेंटर लाइन का बारे में पूछ लिया. दिस इज फॉर सेंटर लाइन टोटल. वन डायरेक्शन में ले सकता है एट स्टैक हाइट. सो इनका वजह से फार्मूला चेंज हो गया. डाउन विंड हॉरिजॉन्टल एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैक हाइट. ये फार्मूला से क्वेश्चन खत्म हो गया. सो दिस इज ए कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट. हम ये कॉन्सेप्ट का बारे में इतना अच्छे से डिटेल में पढ़ा लिया. एक्सक्लूसिव कोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन स्पेशल कोर्स कर लिया हम गेट सिविल एंड एनवायरमेंटल पेपर के लिए, दोनों के लिए. फॉर बोथ गेट सिविल एंड एनवायरमेंटल पेपर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्स ऑन एयर पोल्यूशन डिटेल्ड वी हैव स्टडीड इन द प्लस कोर्स. सो डू ज्वाइन अवर प्लस कोर्सेस. आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट 100% मिल जाएगा उधर.
सेम मॉडल 2024 पेपर में भी दिया। 100 ग्राम पर सेकंड कार्बन मोनोऑक्साइड at an effective stack height h, wind speed of 5 meter per second, discharge given देखो, u value given, 3 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनविंड चल रहा है, वेरी क्लियर डाउनविंड डायरेक्शन बोल रहे हैं। डिस्पर्शन कोएफिशिएंट इन वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन प्रोवाइडेड, वाई डायरेक्शन में दिया है, जेड डायरेक्शन में दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एट अ सेंटर लाइन ऑफ प्लूम 3 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनविंड, बट स्टैक हाइट नहीं दिया, and also they are saying use Gaussian plume model and neglect ground effect of plume. ये तो समझ लो, previously we have given x, y, z and h, ये तो बता दिया। सो डाउनविंड बोल रहे, x0, y0, h value given as h only. So now we can take the formula. This is the formula, we can eliminate everything. सेंटर लाइन फार्मूला ले लो, आंसर मिल जाएगा। सिर्फ सेंटर लाइन फार्मूला ले लो बेटा, सिर्फ सेंटर लाइन फार्मूला डाउनविंड बोल रहे, डाउनविंड के लिए। सो सेंटर लाइन लेके चलेगा, आंसर तो मिल जाएगा आपको। डिस्चार्ज क्या है? 100 ग्राम पर सेकंड, 100 ग्राम पर सेकंड। आंसर क्या में देना पड़ेगा, कौन सा यूनिट में देना पड़ेगा? मिलीग्राम में देना पड़ेगा आंसर। सो 100 इंटू 1000 ग्राम टू मिलीग्राम के लिए, मिलीग्राम पर सेकंड। 2 पाई विंड वेलोसिटी बोल दिया, देखो एक बार विंड वेलोसिटी u 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। सो 50 एंड 25, देखो डिस्पर्शन कोएफिशिएंट्स y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, 50 एंड 25, 50 इंटू 25। चलो सॉल्व करो, हो जाएगा, आंसर तो मिल जाएगा आपको। सो मिलीग्राम पर सेकंड, दिस इज 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर पर सेकंड, दिस इज 50 मीटर एंड 25 मीटर। सो मीटर पर सेकंड कट हो जाएगा, सो मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, तो आंसर मिलेगा 2.54 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन इन डाउनविंड डायरेक्शन वेरी क्लियरली एट ए स्टैक हाइट ऑफ h। h नहीं दिया हमको, डायरेक्टली ले लिया, h तो नेग्लेक्ट कर दिया। प्रीवियस क्वेश्चन में देखो एक बार, प्रीवियस क्वेश्चन में ले लिया e⁻1/2 h by z whole square, because h given, not given केस में डायरेक्टली 2 पाई लेके चलो इंस्टेड ऑफ पाई का जगह में 2 पाई लेके चलो, h नेग्लेक्ट करो, डायरेक्टली यू सॉल्व द क्वेश्चन। 2.54 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। ये बात तो आपको बोलना पड़ेगा। दिस मॉडल्स ऑफ पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन एट ग्राउंड लेवल, एट above the stack, several vehicles are traveling, static stack, this kind of models आज तो ट्रेंडिंग हो रहा है। सो ये मॉडल्स या इनका इंफॉर्मेशन खुद से आपको कभी भी कहा भी नहीं मिलेगा। नोवेयर यू कैन गेट, ओनली इन द केपीएसआर क्लास। सो देखो बेटा, हमारा टॉपर सीरीज तो चल रहा है, नो डाउट। टॉपर सीरीज गिव यू the best questions forever, you are going to get the toughest questions forever। and अभी अनअकैडमी में चल रहे बेस्ट एवर ऑफर 9,999 में आपको पूरा का पूरा ले लो, आपका सिंगल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में गेट एंड डीएससी सिविल, गेट एंड डीएससी एनवायरमेंटल, एंड बाय दिस क्वालिटी कंटेंट आपको इतना अच्छे क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। वंस यू फिनिश एंटायर सिलेबस, दुनिया में कौन सा एग्जाम होता है,
हर एक एग्जाम को टेक्निकल सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। सो इनके साथ में केपी सर का पर्सनल गाइडेंस, रिवीजन क्लासेस, कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेस एंड अनअकैडमीज बेस्ट एवर टेस्ट सीरीज। सो स्प्रेड करो हमारा यूनिवर्सल कोड। आपको पता है केपी सर ऑलवेज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स, इनका जिंदगी आगे बढ़ने के लिए। सो बताओ हमारा यूनिवर्सल कोड केपी सिविल, आपका दोस्त, दुश्मन, जूनियर किसी को चाहिए 50% ऑफ मिलेगा और केपी सर से पर्सनल गाइडेंस। ओके गाइस, लेट्स क्रैक इट।